नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र संधू। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। श्री हरमंदिर साहिब में गेहूं लेकर पहुंचे मुस्लिम भाईचारे के लोग, दिया सिख मुस्लिम एकता का संदेश। लंगर के लिए भेंट किया 33 टन गेहूं। फिर सुर्खियों में आई नाभा की मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल से तलाशी के दौरान मिले 12 मोबाइल व अन्य सामान। पंजाब की सुरक्षित जेलों में से एक मानी जाती है नाभा की मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल। हरियाणा में एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक ने लगाया लाखों रुपए का चूना। फरार हुआ केंद्र का संचालक, लोगों ने पुलिस के पास की शिकायत। पर्यावरण को बचाने में जुटे बॉलीवुड गायक दलेर मेहंदी, बॉलीवुड से दूर कर रहे हैं प्रकृति की सेवा। अब खबरें विस्तार से। पंजाब के मलेरकोटला से मुस्लिम भाईचारे ने एकता व धर्म निरपेक्षता का संदेश दिया है। मलेरकोटला से मुस्लिम भाईचारे के लोग सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में 33 टन गेहूं लंगर के लिए लेकर पहुंचे। श्री हरमंदिर साहिब में लंगर के लिए मलेरकोटला से मुस्लिम भाईचारे के लोग 33 टन कनक लेकर पहुंचे। इस दौरान मुस्लिम भाईचारे के लोग श्री दरबार साहिब में नतमस्तक भी हुए। इस दौरान मसीर अख्तर ने बताया कि वह पिछले कई सालों से सिख मुस्लिम भाईचारे के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ शरारती अंसर उनमें गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं होने देंगे। मैं डॉक्टर नसीर अख्तर हाँ। सिख मुस्लिम ਸਾਂਝਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਤੌਹੀਦ ਪ੍ਰਸਤ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਲਤ ਭਰ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਿਭਾਉਣਾ ਜਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, 14 ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤਕਰੀਬਨ 33 ਟਨ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ 2 ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 12 ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਬਾਰ ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 35 ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਬਗਦਾਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਕੀਆ ਆਸਥਾਨਾ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਆਕਾਰ ਰੂਪ ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1469 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਭੋਜ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾਈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੌਲਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਕਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੱਤਰ ਕਾ ਮਾਰਚ 1969 ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਹੀ ਪਲ ਜਨਮਿਆ ਕਾਲੂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਲ, ਮਾਤਾ ਤਿਰਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਤੱਕਨਸਾਰ ਨਿਹਾਲ, ਲਾਇਆ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕਲੇਜੇ ਨਾਲ, ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਰਤ ਨਿਹਾਲ, ਪੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਕੀਤੀ ਤੁਰਤ ਸੰਭਾਲ। ਪੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਆਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਹਿਦ ਚਟਾਲ, ਫਿਰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਆਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਹਿਦ ਚਟਾਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁੜਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 33 ਟਨ ਕਣਕ ਹੈ, ਇਹ 330 ਕੁਇੰਟਲ ਜਿਹੜੀ 2 ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ 33 ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ। ਉਨਕਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਅਹਿਲੇ ਸਿਆਸਤ ਜਾਣੇ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣਾ। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। अहले सियासत सियासी लोग। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं एसजीपीसी के सदस्यों का कहना है कि मलेरकोटला से मुस्लिम भाईचारे के लोग एकता का संदेश लेकर आए हैं, जिस पर उन्होंने खुशी का इजहार किया है। बहुत वड्डी खुशी की गल है। सचखंड श्री हरमंदिर साहिब जी विखे साडे जो मुस्लिम समाज तो मलेरकोटले तो जो धन धन श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी के लंगर दे विच कणक लैके आए ने। सो मैं ये समझदा ये गुरु रामदास जी के घर दे विच कणक नहीं लैके आए, एक बहुत वड्डा संसार दे विच एक आपसी भाईचारे का एक पैगाम लैके आए आ और ये एक बहुत वड्डा उपराला वा। और ये जिहड़े साडे मुस्लिम भाईचारे जिहड़े आण के जिन्हां ने दस्सिया
ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੋਵਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਸੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਵੰਡਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਸੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਗਨੀ ਖਾਨ ਨਬੀ ਖਾਨ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਔਰ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਏ ਹੋਏ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉ ਆਇਆ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵੰਡਣ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, वाहिगुरु जी की फतेह। साथ ही उन्होंने ऐसे लोगों को संदेश भी दिया है जो हिंदू मुस्लिम एकता को खत्म करने की कोशिश करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट D5 चैनल हिंदी। जहां कोरोना महामारी के कारण लोगों के काम धंधे बंद हैं, वहीं बॉलीवुड व पंजाबी गायक दलेर मेहंदी फिल्म उद्योग से दूर प्रकृति की सेवा में जुटे हुए हैं। पेश है रिपोर्ट। जहां कोरोना महामारी के कारण लोगों के काम धंधे चौपट हुए हैं, वहीं फिल्म उद्योग पर भी कोरोना की मार पड़ी है। लेकिन कुछ कलाकार ऐसे भी हैं जो इस दौर में फिल्म उद्योग से दूर प्रकृति की सेवा में जुटे हुए हैं। प्रसिद्ध पंजाबी गायक व बॉलीवुड में अपनी गायकी का लोहा मनवाने वाले दिग्गज कलाकार दलेर मेहंदी आजकल पर्यावरण को हरा भरा रखने में अपना योगदान डाल रहे हैं। दलेर मेहंदी प्रकृति की गोद में बने अपने फार्म हाउस व उसके आसपास पेड़ लगवा रहे हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ फॉरेस्ट का, और उन्होंने मुझे पेड़ दिए काफ़ी, और मैं अमरिंदर जी का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मेरे बहुत प्यारे मित्र जो चीफ फॉरेस्ट उत्तराखंड हैं उनके प्यार की बदौलत, और हमारे चीफ फॉरेस्ट हरियाणा अमरिंदर कौर जी, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं इस मानसून में पेड़ लगाना चाहता हूँ। तो मैंने जो आपने मुझे पेड़ दिए हैं, मैंने शुरू जो किए हैं, ये सांपी नगरी गौशाला है, ये मेरी जगह नहीं है, और ये रोड भी मेरी नहीं है। आप देखेंगे जो आपने मुझे पेड़ दिए हैं वो मैं यहाँ रोड से शुरू कर रहा हूँ, बिल्कुल रोड से शुरू कर रहा हूँ, ताकि ह्यूमैनिटी के लिए, लोगों के लिए काम आए, और पेड़ तो ही जीवन है। और ये जो वीडियो देखते हैं आप लोग, आप भी एक कदम उठाइए, एक पेड़ लगाइए। हम तो मेरे ख्याल इस बार 10,000 पेड़ लगाने वाले हैं, और जितना भी मानसून में लगाना हो सका हमारे साथ। अपने घर में नहीं लगा रहे, अपने घर के बाहर लगा रहे हैं, आपके लिए। इस वक्त 47 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन आपकी सेवा के लिए जान हाजिर है। बारिश बोलते 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 थक गए, लेकिन शुक्र है आज थोड़ी बूंदाबांदी शुरू हुई है, और आप सोच नहीं सकते हम लोगों ने कितना इंतजार किया इस बारिश का, और अब करें, अब जरा खुल के बरस जाए तो और मजा आ जाए। थैंक यू सो मच। गायक दलेर मेहंदी उन कलाकारों के लिए एक मिसाल पेश करते दिखाई दे रहे हैं जो आज कोरोना के संकट में डिप्रेशन का शिकार होकर गलत कदम उठा चुके हैं या फिर ऐसा कदम उठाने की सोच रहे हैं। जरूरत है ऐसे कलाकारों से प्रेरणा लेकर जीवन में सकारात्मक सोच अपनाने की। ब्यूरो रिपोर्ट D5 चैनल हिंदी। पंजाब की सुरक्षित जेलों में से एक मानी जाती नाभा की मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल से तलाशी के दौरान बड़ी संख्या में मोबाइल मिले हैं। पंजाब की सुरक्षित जेलों में से एक मानी जाती नाभा की मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल से तलाशी के दौरान 12 मोबाइल फोन, 14 चार्जर, 3 वाईफाई डोंगल बरामद किए गए हैं। जानकारी के अनुसार यह सारा सामान जेल की एक ही बैरक से बरामद किया गया है। यह कैदी पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल पर थे। के दौरान असी 8 स्मार्टफोन ते 4 कीपैड फोन, 3 डोंगल ते ईयरफोन तो अलावा 12 के करीब 14 के करीब चार्जर बरामद किए ने जी। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? हाँ जी, जिथे बंद सी उस ब्लॉक ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 8-9 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਮਕਸਦ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਏ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਚੱਲਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ
ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਬੈਰਕ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 20 ਸੈੱਲ ਨੇ ਜੀ। 20 ਜੋ 10 ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ CCTV ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਾਨਜੋ DGP ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਚੱਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ CCTV ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਨਲੌਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਬੰਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਅੱਜ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਜੋ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਮੀ ਇੱਕ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਕੈਦੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਵੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੇ DSP ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ 12 ਮੋਬਾਈਲ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ DSP ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਣਗੇ, ਲਿਆਉਣਗੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ? ਇਹ 52 ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ FIR DSP ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਇਹ 16 ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ 5 ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਪੁੱਕੇ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਵੀ ਉਹ 5 ਵੀ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਰ ਇੰਨੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਵਗ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਹੀ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹਟੇ ਐਂਡੀ ਦਾ ਪਰਚਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਨਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਐਫਰਟ, DSP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਇਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਐਫਰਟ ਜੀ। ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਬੰਦ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਕਾਫੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਗਾ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਜੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਿਕਵਰੀ ਐਡੀ ਭਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਸਾਡਾ 3-4 ਘੰਟੇ ਚੱਲੇ। ਕਿੰਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ, ਕਿੰਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ? 12 ਮੋਬਾਈਲ ਜੀ, 3 ਡੋਂਗਲ, 14 ਚਾਰਜਰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ ਆ ਕਿ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀ। ਬੜਾ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ JNLD ਟੀਮ ਸੀ ਨਾਲ, ਐਂਟੀ ਸਬਟੇ ਟੀਮ ਨਾਲ, ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ SHO ਸਿਟੀ ਸਦਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਬੈਰਕ? 6 ਨੰਬਰ ਬੈਰਕ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬੰਦ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪਰਚਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆਏ ਜਾਣਗੇ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ FSL ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ भी ऑन रिकॉर्ड होगा जी, सारा इस आना तफ्तीश च लियावांगे। जेल से इतनी बड़ी संख्या में मोबाइल मिलना जेल अधिकारियों व कर्मचारियों की कारगुजारी पर बड़े सवाल खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट D5 चैनल हिंदी। जहां हम लोग कोरोना का शिकार हो रहे हैं, वहीं अब प्रशासनिक अधिकारी भी कोरोना की चपेट में आने लगे हैं। पंजाब में पड़ते दिड़भा के SDM की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। पंजाब के संगरूर में पड़ते दिड़भा के SDM भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिससे पूरे प्रशासन में हलचल है। वहीं आम लोगों में भी सहम का माहौल है। SDM के कोरोना पॉजिटिव हो जाने के बाद दिड़भा का SDM दफ्तर और मार्केट कमेटी दफ्तर बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि दोनों दफ्तर एक ही इमारत में हैं। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੇਸ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਸੀਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਵਧਾਨੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿੜਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਮਾਹੌਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਖਤਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਵੱਧਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਅਗਰ ਲੋਕੀ ਕੁਛ ਦਿਨ ਵੇਟ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਟ ਅਗਰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਪੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਰਹੀਏ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀए ਤੇ अपनी जो फिजिकल डिस्टेंस है उन्हें बना के रखिए, घर दे विच रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट D5 चैनल हिंदी। हरियाणा के विभिन्न स्थानों पर लगाए गए रिचार्ज बोरवेल में बड़ा घपला होने का मामला सामने आया है। यह खुलासा RTI के द्वारा हुआ है। लोगों ने इस मामले की जांच की मांग की है। हरियाणा के रतिया में विभिन्न स्थानों पर लगाए गए रिचार्ज बोरवेल में बड़ा घपला होने का मामला सामने आया है। वार्ड नंबर 13 के एक व्यक्ति ने RTI के द्वारा जानकारी मांगी थी तो बताया गया कि वार्ड नंबर 13 में 2 रिचार्ज बोरवेल लगाए गए हैं। आरोप है कि RTI के जवाब के विपरीत वार्ड नंबर 13 में केवल एक ही रिचार्ज बोर लगाया गया है। इस मामले में RTI डालने वाले युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर SDM को एक ज्ञापन भी सौंपा है जिसमें मामले की जांच की मांग की गई है। मामला ये है भी जो रिचार्ज बोर लगाए हुए हैं रतिया के शहर के अंदर, उसमें काफ़ी बड़ा घोटाला है। तो उसकी जो डूंगाई है उसकी पैमाइश कराई जाए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा घपला किया गया है। यहाँ तक कि भी जो गिनती में भी रेफरी की हुई है। टोटल जो पैसा है मतलब नगर पालिका लगा रही है उसमें बड़े कमीशन खोरी के हिसाब से पैसा खर्च किया जाता है। हर जगह इनकी कुंडी फिट है और ये रिचार्ज बोर की जब आप जांच कराएंगे तो ये बहुत बड़ा घोटाला सामने आएगा। और इसमें हर चाहे गली बननी हो चाहे गली उखाड़नी हो, हर तरह का कमीशन लिया जाता है। और आज हम SDM साहब से इस जो रिचार्ज बोर जो लगाए गए हैं रतिया शहर के अंदर उसकी जांच की मांग करेंगे। और क्या लगा आपको इसमें बड़ा घपला, इसमें गिनती में ही फ़र्क है। जो उन्होंने तादाद बता रखी है उसमें भी कम बोर लगाए हुए हैं और इसकी जो डूंगाई है वो भी कम पाएगी। और RTI के माध्यम से हमें इसकी जानकारी प्राप्त कर ली है और जानकारी के मुताबिक वार्ड नंबर 13 में जहाँ 2 बोर लगने चाहिए दिखाए गए हैं वहाँ एक ही बोर लगा हुआ है। इसका मतलब ये नगर पालिका के सेक्रेटरी और सारा ताना बाना फिट है इनका आपस में, और ये मोटी जब तो सरकार को लगा रहे हैं, इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए और इनको मौजूदा सेक्रेटरी को सस्पेंड करके इसकी जांच की जाए। जो इसका जिम्मेदार अधिकारी है जिस टाइम ये बोर लगे थे उसके खिलाफ इसकी FIR होनी चाहिए। और इसके लिए हम आज SDM साहब से जांच की मांग करेंगे। जांच होने के बाद पता चल जाएगा कि ये बहुत बड़ा घपला है। नाम की तो मेरा नाम पंकज गर्गई, वार्ड नंबर 13 रतिया। तो मामला की मामला यही कि सारे शहर से नगर पालिका ने रिचार्ज बोर लगाए थे। जो मैंने अपने वार्ड नंबर 13 की RTI लगाई तो मैंने पता लगा कि कागज़ों विच जो नगर पालिका लगाए ने 2 रिचार्ज बोर लगाए ने, पर असल च उत्थे एक रिचार्ज बोर ही लग्या हुआ है। तो एस्टीमेट कोस्ट 3.5 लाख रुपये इन्होंने जो नगर पालिका ने बिना रिचार्ज बोर लगाए जो ये मिले हुए लोग ने, कोई MC है या जो भी है ठेकेदार है वो ले गए। तो हुण इस उपर कार्रवाई चाहते हैं कि कार्रवाई की जाए जो लोग शामिल ने। वार्ड नंबर 13 का साढ़े शहर का बहुत माड़ा हाल है, पानी नहीं आता 2-2 3-3 दिन। और तो MC नूं मैं कहना चाहना भी जो गलत काम कर रहे हैं उन्होंने तो कार्रवाई की जाए। तो SDM साहब नूं असीं ज्ञापन दे के आए हुण कि जल्दी जल्दी इन्हां कार्रवाई की जाए, जो भी लोग इस शामिल ने तो उन्होंने कार्रवाई करी जाए। तो बाकी शहर के होर भी वार्डां च जो रिचार्ज बोर लगे हुए हैं उन्होंने गहराई की चंगी तरह जांच की जाए। किन्ने दा घोटाला है ये एवरेज जी जो इन्होंने कागज़ों से सानूं दिते RTI के माध्यम से 3.5 लाख रुपये की कोस्ट है जो रिचार्ज बोर की दिखाई गई है। 3.5 लाख रुपये, किते ज़्यादा भी है किते घट भी है। ये लगभग 3.5 लाख रुपये के करीब है। किन्ने बोर ते वैसे किन्ने बोर लगे? ये 2 बोर दिखाए गए हैं जी, एक 9-10 गली वार्ड नंबर 13 के करीब, एक अरोड़ा कलोनी मिठू चक्की के कोल। 9-10 गली के जो नेड़े है उत्थे कोई रिचार्ज बोर नहीं लग्या। मैं गली वाले तो भी पूछा लेकिन कोई रिचार्ज बोर नहीं लग्या है उत्थे। इस मामले में SDM रतिया का क्या कहना है आप वह भी सुने। एक रिचार्ज बोर्ड का मामला है, घपलेबाजी के आरोप लगाए RTI प्राप्त हुई है, क्या मामला कैसा है? इसमें अभी मेरे पास पंकज गर्ग
पुत्र श्री राजकुमार गर्ग, इसने कोई आरटीआई के तहत कोई जानकारी प्राप्त की होगी और इनका ये है कि यहाँ पे 2 रिचार्ज बोर्ड लगे हैं, नगर पालिका का ये कहना है। लेकिन जो आरटीआई जिसने मांगी है वो कहता है कि सर इसमें 1 रिचार्ज बोर्ड लगा है। तो इसकी मैं स्वयं इसकी जांच करूँगा और सेक्रेटरी जो नगर पालिका है इससे मैं इसके सारे कागजात लेके इसकी जांच करूँगा। सब इसमें गहराई का भी जिक्र किया गया, भी जितनी गहराई दिखाई गई जो भी एमबी इन्होंने भर रखी है उसके मापदंडों के अनुसार यदि ऐसा नहीं है तो जो भी दोषी कर्मचारी है उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के फतेहाबाद से किशोर कुमार की रिपोर्ट, D5 चैनल हिंदी। हरियाणा के घरौंडा में एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक का लाखों रुपए लेकर फरार होने का मामला सामने आया है। हरियाणा के घरौंडा में एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र का संचालक लाखों रुपए का गबन कर फरार हो गया है, जिसके बाद ग्राहक सेवा केंद्र पर ताला लटका है और ग्राहक खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ग्राहकों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी है। ग्राहकों में से किसी ने अपने पैसे ट्रांसफर करवाए हैं तो किसी ने अपने बच्चों की फीस भरी है, पर पैसे निर्धारित गंतव्य तक नहीं पहुंचे। स्थानीय ग्राहकों के अलावा प्रवासी बिहारी मजदूर भी ठगी का शिकार हुए हैं। ग्राहक सेवा केंद्र का संचालक पिछले कई सालों से काम कर रहा था और ग्राहकों का उस पर विश्वास बना हुआ था, इसलिए कुछ ग्राहक रसीद भी नहीं लेते थे। 3 तारीख को हम यहाँ पैसे जमा करवा के गए थे जी। तो उन्होंने जो यहाँ एजेंट थे रोहित, उन्होंने कहा कि भी सर्वर डाउन है, लंच के बाद आपके पास मैसेज आ जाएगा, जमा होएगा जी। तो बट लंच के बाद मैसेज आया नहीं जी। तो हम 4 तारीख को आए तो 4 तारीख को ऑफ मिला, फ़ोन स्विच ऑफ मिला, फ़ोन काफ़ी ट्राई किया, फ़ोन स्विच ऑफ मिला। हाँ आए तो पता लगा कि ऐसे ऐसे वो मिल नहीं रही, दुकान बंद है। तो अब फिर संडे आ गया, सैटरडे के बाद फिर हम मंडे आए, मंडे भी ऐसी प्रॉब्लम शुरू होगी और हमने जो पैसे जमा करवाए थे वो इनके रजिस्टर पे इनके पास एंट्री करवाई थी, ठीक। उसके बाद हमारे पास कोई ना पैसे आए ना कुछ। उसके अकॉर्डिंग फिर हमने मैनेजर साहब से बात करी, फिर मैनेजर साहब के अकॉर्डिंग फिर हमने यहाँ थाने में अपनी FIR करवा दे के आए, बट उन्होंने अभी तक कोई उसका लड़के का कोई अता पता नहीं। मैं किसी बच्चे की फ़ीस जमा करवाने आया था 2500 रुपये। बच्चों की फीस? बच्चों की फ़ीस थी 2500 रुपये, वो जमा करवाने आया था जी। बट हो नहीं पाई, वो उन्होंने जमा नहीं करी। बट ये है कि हमने अपनी तरफ से बच्चे की तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, अपनी करवा दी, लेकिन उसकी तरफ से जो हमने पैसे जमा करवाए थे वो नहीं। पुलिस को शिकायत दे दी है? पुलिस को शिकायत दे दी, कोई कार्रवाई नहीं हो पाई अभी तक, उनका कोई रिस्पॉन्स आया नहीं। ये ग्राहक सेवा केंद्र SBI का जी। इसमें ना जी शुक्रवार को 3/7/2020 को मैंने 20-20 हज़ार की 2 रकम जमा करवाई थी जी। इसने पैसे तो रख लिए जी, बोला एक रसीद दी मेरे को, बोला जी सर्वर डाउन है, शाम को जमा होएंगे आपके पैसे। शाम को आया था, ये यहाँ मिला ही नहीं जी। फिर मैंने अगले दिन इसकी मैनेजर साहब से शिकायत करी, SBI बैंक के मैनेजर साहब है रुद्र प्रताप देव जी, और थाने में एक शिकायत दी जी इसकी। तब से ये आज तक इसने ना तो ग्राहक सेवा केंद्र खोला, अब तक फरार है, ना मेरे पैसों का अभी तक कुछ हुआ जी। मेरे तो 40 थे, कई ग्राहक हैं यहाँ पे। कितने ग्राहक हैं लगभग? मेरे हिसाब से 8-10 लाख का घपला है जी। इस मामले में SBI के मैनेजर का क्या कहना है, आप खुद ही सुन लें। अच्छा जी, हमें भी कुछ शिकायतें मिली हैं SC/ST के खिलाफ, ठीक है जी, लेकिन इस मामले में बोलने में मैं ऑथराइज नहीं हूँ। ये जो CSP चैनल है, ये बैंक ने एक अलग चैनल बना दिया था, तो जो CMFI हैं कंसर्न, वो इस बारे में ऑथराइज स्टेटमेंट दे सकते हैं। आपको मैं इतना बता सकता हूँ कि ये जो है हमारे नेशनल BC हैं, जो बैंक बिजनेस कोरस्पॉन्डेंट बोलते हैं, उनको हमारे है कंपनी मैसर सेव सॉल्यूशन, ये उनका एम्प्लॉई था, बैंक का डायरेक्ट एम्प्लॉई था, लेकिन इसके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेबल यूज़ करने की परमिशन थी, जिसका इसने मिसयूज़ किया है। इसलिए हम भी इसके खिलाफ FIR करवा रहे हैं और कंपनी वाले लोग आज FIR करवाने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि इसने बैंक के नाम से और फ्रॉड किया है, बैंक का नाम इसने यूज़ किया है। बाकी जो भी इसमें डिटेल्ड है वो हमने अपने हेड ऑफिस को भेज दिए है और वहाँ से जो भी इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कंपनी के एम्प्लॉई यहाँ पहुँच चुके हैं और ये आज इसके खिलाफ ऑफिशियली FIR करवा रहे हैं। अभी तक मेरे पास जो कंप्लेंट है अराउंड 1 लाख के आसपास आ चुकी है। हालांकि सुनने में आ रहा है कि इसके अलावा भी कुछ हैं जिन लोगों ने का इन पे विश्वास बना हुआ था और उन्होंने सीधे भी नहीं लेते थे, इससे काम करवाते थे, क्योंकि इसने कई बार उनसे पैसे जमा भी किए होंगे, काफ़ी सालों से यहाँ काम कर रहा था। तो आपके माध्यम से घरुंडा के उन सभी लोगों से जिसके साथ भी CSP ने कोई भी फ्रॉड किया है, कोई भी गबन किया उनके पैसों का, उन सबसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप जल्दी से जल्दी अपनी जो भी एप्लीकेशन है वो हमें फॉरवर्ड करें
ताकि हम आगे कंपनी को और जो भी बैंक का हेड ऑफिस है उसको फॉरवर्ड कर सकें। जो भी एक्शन लेना है वो आगे होगा और हम आपको सूचित भी करेंगे उस बारे में। हमारे पास जो उसके ऑफिशियल नंबर थे जी वो नहीं चल रहे, उसने फ़ोन नहीं रिसीव करा, उसने सब बंद कर रखा है। हमने उसके फादर वगैरह का पता करवाया, घर भेज के सब करवाया, तो पता चला कि उन्होंने भी FIR कराई हुई है कि वो लापता है। हरियाणा के घरौंडा से सुरेंद्र पंचाल की रिपोर्ट, D5 चैनल हिंदी। जलापूर्ति विभाग रादौर में DC रेट पर कार्यरत सीवरेज कर्मचारियों ने विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए गंभीर इल्जाम लगाए हैं। जलापूर्ति विभाग रादौर में DC रेट पर कार्यरत सीवरेज कर्मचारियों को कम वेतन मिलने से कर्मचारियों में भारी रोष है। इन कर्मचारियों का आरोप है कि पूरा वेतन दिए जाने की मांग को लेकर सीवरेज कर्मचारी कई बार विभाग के अधिकारियों व ठेकेदार से भी मिले हैं, लेकिन हर बार उन्हें लॉकडाउन का हवाला देकर टरका दिया जाता है, जिससे सीवरेज कर्मचारियों का विभाग में शोषण हो रहा है। हमारे दौर में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में 12 साल से सीवरेज का कार्य करते आ रहे हैं और हमें सैलरी बहुत ही कम दी जा रही है, जिससे हमारा घर का गुजारा चलाना बहुत मुश्किल से चल रहा है। और यमुनानगर में यहाँ की बजाय 82-50 रुपये वहाँ दिए जा रहे हैं। तो हमने कई बार जय साहब से बात की तो लॉकडाउन का हवाला देके हमें टाल दिया जाता है। बार बार यही कहा जाता है कि अभी लॉकडाउन लग रहा है कि बात करेंगे हम। तो हमारी यही मांग है कि जो यमुनानगर में सैलरी मिल रही है हमें भी पूरा वेतन दिया जाए और एक बिल्कुल भी टाइम पे तनख्वाह मिलती है। कभी 20 तारीख हो जाती है, कभी 25 तारीख हो जाती है। तो ये कहीं से उधार लेने पड़ते हैं पैसे, बड़ी मुश्किल से गुजारा चलता है घर का। तो हमारी यही मांग है कि हमें वेतन समय पर दिया जाए और जो यमुनानगर वेतन मिल रहा है वही वेतन हमें भी दिया जाए। यमुनानगर में तो 82-50 रुपये दिए जा रहे थे तनख्वाह जी, और यहाँ 6,970 मिल रहे हैं जी। हमने पहले मुद्दा उठाया है जी, तो हमारे 1500 रुपये काट दिए गए थे जी। हमने JSD को बोल के देखा जी, कोई कार्रवाई नहीं करता जी। हम जी कहते हैं लॉकडाउन के बाद होएगा, लॉकडाउन के बाद होगा, इलाज दे के टाल देते हैं जी। हमने कई बार मुद्दा उठाया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही जी। बस हम यही चाहते हैं जी कि हमें भी यहाँ पे यमुनानगर के जैसी तनख्वाह मिलनी चाहिए। इस टाइम क्या दिक्कत से सहनी पड़ रही है आपको? हाँ जी, बहुत दिक्कत सहनी पड़ रही है जी। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही जी, ना जी सुनते ना SD सुनता, कोई हमारी सुनवाई नहीं सुनता जी। सब ऐसे बोलते हैं लॉकडाउन के बाद देखेंगे जी। बस हमारी मांग यही है जी कि यमुनानगर के बराबर हमें सैलरी मिलनी चाहिए जी। वहीं इस बारे में जलापूर्ति विभाग के JE विनोद कुमार ने बताया कि विभाग द्वारा समय पर पूरे कर्मचारियों को वेतन दिया जा रहा है, फिर भी मामले को लेकर जांच की जाएगी। ये जो समस्या मेरे संदर्भ में अभी आई है, इस बारे में इनका चेक किया जाएगा, क्योंकि विभाग की तरफ से हर बार इनको समय पर पे दी जा रही है। अगर इनको नहीं मिल पा रही है तो हम चेक करेंगे कि किस कारण से इनकी नहीं आ पा रही है, क्योंकि विभाग की तरफ से तो समय पर इनकी बिल जो अदायगी है वो की जा रही है। और दूसरा ये पेमेंट क्यों कम आ रही है? 8200 जब दिए जा रहे हैं इनको, तो इनको 6000 के करीब बता रहे हैं दिए जा रहे हैं। नहीं जी, जो कॉन्ट्रैक्टर का जो बनता है EPF ES IS करता है जो इनका, वो कंप्लीट करता है इनका, उसके अकॉर्डिंग ही इनको मिनिमम वेजेस जो दिए जा रहे हैं, जो निर्धारित किए गए हैं वही दिए जा रहे हैं। 1000 रुपये जैसे पीछे इनको मिलना था लॉकडाउन के दौरान, वो नहीं मिला इनको आज तक? नहीं, इनके पास जो पूरी सैलरी जा चुकी है, इनके पास कोई से कुछ नहीं है। हमारे पास जो भी सैलरी गई है इनकी वो पूरी दी जा चुकी है। और समय पे करे वेतन नहीं आता इनका? समय पे सर अभी जो लॉकडाउन रहा उसके अंदर कुछ दिक्कतें आई हैं, लेकिन जो इनका जो वेतन है वो सभी का समय पे जा गया हुआ है। हमारी तरफ से यहाँ से बिल 2 या 3 तारीख को भेज दिया जाता है और 10 तारीख से पहले इनकी अपनी सैलरी डाल दी जाती है। कितनी पेमेंट दी जाती है इनको सर? इनको मिनिमम वेजेस के 80 रुपये निर्धारित किया गया है, उसके हिसाब से इनको सैलरी दी जाती है। हरियाणा के रादौर से कुलदीप सैनी की रिपोर्ट, D5 चैनल हिंदी। जाने से पहले एक नजर अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। श्री हरमंदिर साहिब में गेहूं लेकर पहुंचे मुस्लिम भाईचारे के लोग, दिया सिख मुस्लिम एकता का संदेश, लंगर के लिए भेंट किया 33 टन गेहूं। फिर सुर्खियों में आई नाभा की मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल से तलाशी के दौरान मिले 12 मोबाइल व अन्य सामान। पंजाब की सुरक्षित जेलों में से एक मानी जाती है नाभा की मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल। हरियाणा में SBI के ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक ने लगाया लाखों रुपए का चूना, फरार हुआ केंद्र का संचालक, लोगों ने पुलिस के पास की शिकायत। पर्यावरण को बचाने में जुटे बॉलीवुड गायक दलेर मेहंदी, बॉलीवुड से दूर कर रहे हैं प्रकृति की सेवा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी धर्मेंद्र संधू को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।